So we'll move ahead with one more derivation of fringe width and its position in Young's double slit experiment. Okay, Young's double slit experiment क्या है, आपको पिछले क्लास में बताया था. Can anybody repeat क्या हो सकता है? What is the theory and principle of Young's double slit experiment? The notion of light to be wave was old, but there was no way or no experiment to prove that it follows a wave nature. Okay, so Thomas Young in 1801, what he planned, again I am telling it again and again क्योंकि ये आपको clear होना चाहिए. What he planned, he had not used monochromatic light, but after that, after first iteration, he had done something to create a monochromatic light, in which what we found was when two waves having same frequency and wavelength, when they interact with each other, है ना, इससे इंटरेक्ट कराया, दो स्लिट क्यों डाला, इससे इंटरेक्ट कराया, दो वेव्स को इंटरेक्ट कराया. व्हेन दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. व्हाट इज इंटरफेरेंस? इट इज द इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स. वेरी सिंपल. सो व्हेन द टू वेव्स इंटरेक्टेड विथ ईच अदर, if it was not a wave, there should not have been any variation in the intensity of the light. If the light was not a wave, there should not be any variation in the intensity of light. I am using one torch, another person is using another torch. If we are pointing at the same direction, we should get more intensity, because this torch 1's intensity and torch 2's intensity should add up if it was a particle. But this was not what we saw as our observation. There was alternate variation of high intensity and low intensity. This proved that light is a kind of wave. How we did it is through this double slit experiment. So though two independent sources may not generate coherent source, means a source, two waves with same frequency. So what he did, he used one source. First what he did is he splitted that wave into two waves. How? Light source, first slit, he passed the light through first slit. There it created a spherical wavefront, but over a distance, if this distance is very far, this spherical wavefront, when we reach this double slit point, it will be just like a big arc of a sphere, a big arc of a circle. It will be almost equivalent to a plane wavefront. It will be equivalent to a plane wavefront, and this S1 and S2 will take this wavefront, create secondary disturbance and create two wavefronts. These two wavefronts, the slits are very near. They are very near. So what will happen? These two wavefronts will also interact with each other, and we can say that these two sources, slits, act as coherent source. क्या कर सकते हैं? It is coherence. Coherent source means they have same frequency, or at certain points it will have zero phase difference, at certain points it will have constant phase difference. Okay, its phase difference will vary from 0 to some constant values. Okay, so this happened. Now we have considered this. This is first slit, slit 1. This is slit 2. They are apart with a very small distance d, to the tune of very few millimeters. Okay, if slits diameter is 1 millimeter,
सो दिस विल बी 0.5 0.25 मिलीमीटर, इतना डिस्टेंस है इन दोनों में. ओके, द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज एट अ डिस्टेंस d. ओके, सो इफ यू सी दिस, if I take a point P in the screen, ठीक है, so this wave's path is S1P, slit 1's wave's path is S1P and slit 2's path is S2P. I want to calculate the path difference. Okay, मुझे क्या चाहिए? पाथ डिफरेंस. P is equal to S2P minus S1P. यहाँ से मेरे को दिखता है कि ये ज़्यादा डिस्टेंस में है, इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ पे वेव को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ पे कम ट्रैवल करना पड़ेगा. मुझे ये चाहिए S2P माइनस S1P. बताइए, कुछ आइडिया लगाइए कैसा कर सकते हैं. दिस इज द सेंट्रल लाइन विच इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ दिस D. ये जो सेपरेशन है इसका मिड पॉइंट क्या है? दिस लाइन है कि नहीं? तो इसको SO इज एक्चुअली डिवाइडिंग बोथ द स्लिट्स इनटू टू हाफ्स. इफ दिस डिस्टेंस इज D, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? D by 2. और ये दिस डिस्टेंस D by 2. इज दिस क्लियर? सपोज आई टेक फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट P, द डिस्टेंस इज x. फ्रॉम सेंटर to this point P is x. Okay, so consider this triangle S2BP. Consider this triangle S2BP. कुछ निकल सकता है इससे? S2BP. S2P निकल सकता है ना? निकालो तो कैसे निकलेगा? ये भी D by 2 है, ये भी D by 2, स्मॉल D by 2, क्योंकि इसने हाफ कर दिया ना इस सेपरेशन को. बताइए तो क्या होगा S2BP में, इन ट्रायंगल S2BP. S2P square is equal to S2B square, S2B square plus PB square. S2B है D, S2B है D, तो मैं लिख दूं यहाँ पे D स्क्वायर. ठीक है, और PB अगर ये x है और ये D by 2 है, x plus D by 2. Is this correct? X plus D by 2 whole square. ये निकल गया S2P square, उसको मत कर अभी. ठीक है, S1P निकालना है इन ट्रायंगल S1PA. आप निकाल सकते हो डायरेक्ट S1P square. S1P square is equal to, again this is D square. अब ये क्या है? ये x है और ये D by 2 है, x minus D by 2. ओके, D square plus x minus D by 2 whole square. ये आपके बुक में एक लाइन में सिखाया, बताया है इसको. एक लाइन पे आपको मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ कैसे आया. ठीक है, तो this is 1, this is 2, S2P square है ना, माइनस
S1p²। ये कर सकता हूँ क्या? 2 - 1 इक्वेशन 2 - 1 कर सकते हैं। S2p² - S1p² इज इक्वल टू d² प्लस x प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस d² प्लस x माइनस d/2 होल स्क्वायर। नहीं, ये भी माइनस। ठीक है, सही हो रहा है? तो ये और ये कट गया, हो गया। अगर मैंने इसको माइनस किया, -d² माइनस x माइनस d², मैंने एक समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बचा? x प्लस d² माइनस x माइनस d², यही बचा ना। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी S2p प्लस S2p माइनस S1p इंटू S2p प्लस S1p। लिख सकते हैं क्या? इसको भी लिख सकते हैं वैसे। हाँ, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस। इसको भी वही लिख सकता हूँ, पहले लिख दिया a प्लस बी, x प्लस d/2 प्लस x माइनस d/2, कितना हुआ? 2x। x प्लस d/2 प्लस x माइनस d/2, कितना हुआ? 2x इंटू x प्लस d/2 माइनस x प्लस d/2, यानी कितना हो गया? d। करके दिखाऊं क्या? करके दिखाऊं? चल पहला है x प्लस d/2 प्लस x माइनस d/2, a प्लस बी। ठीक, फिर a माइनस बी, x प्लस d/2 माइनस x प्लस d/2। अब आया समझ में? तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? ये हो गया 2x और ये d/2 प्लस d/2 कितना हुआ? d। ठीक है, इसमें से मुझे चाहिए ये, तो ये उधर ले जाता हूं, S2p प्लस S1p। ओके, तो S2p माइनस S1p ये हो जाएगा S2p प्लस S1p। ठीक है, दिस इज द पार्ट डिफरेंस p, और ये है। अब ये देखिए ये d बहुत छोटा लिया है मैंने, ये d बहुत छोटा है कि नहीं, और ये डिस्टेंस भी बहुत उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? S1p इज नियरली इक्वल टू S2p, है कि नहीं? S1p इज नियरली इक्वल टू S2p, क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं लिया है मैंने, है ना, सब पास पास है, सब पास पास है। तो मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है S1p और S2p में, तो मैं इसको इक्वल ले सकता हूँ। S1p इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू, एकदम इक्वल नहीं है, इट इज नियरली इक्वल टू S2p। कर सकते हैं ऐसा? है ना, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि S1p इज इक्वल टू S2p एंड इट इज नियरली इक्वल टू d, है ना। सो आई कैन टेक S1p is nearly equal to S2p and is nearly equal to d। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं? S2p is equal to d, S1p is equal to d, यानी 2d। तो S2p माइनस S1p इज इक्वल टू XD अपॉन 2 कैपिटल D, 2 कट
तो ये क्या हो गया, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी. S2P माइनस S1P पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, वेयर डी इज द distance between the two slits and D, capital D is the distance between the slits and the screen. Is this clear? अब हमने पिछले क्लास में कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे, एंड दिस इज इक्वल टू P, स्मॉल p, है ना. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? हाँ ठीक है, तो उसमें P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू क्या हो सकती है? 2n लैम्डा बाय 2, है ना. ये देखिए ये कंडीशन यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 में, है ना. यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 में, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पे. ये B1 B2 B3 क्या है? दिस इज अ सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल वाला है. फिर एक साइड इधर गया तो यहाँ पे जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया तो, और यहाँ पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया तो, और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा हो गया तो, यही होगा ना. n की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 0. n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 2 लैम्डा बाय 2 यानी लैम्डा, है ना. तो ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इधर भी ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा. व्हेन P पार्ट डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा. यही था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी. एंड व्हेन पार्ट डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो मुझे क्या मिलेगा, है ना. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये D1, ये D2, ये D3, जहाँ जहाँ इंटेंसिटी 0 है यानी मिनिमम है. ठीक है, ये चीज़ पिछले क्लास में अच्छे से समझाया था मैंने आपको, है ना. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको क्या मिलेगा? ब्राइट स्पॉट. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट. तो ये डार्क से डार्क के बीच में जो पॉइंट है वो ब्राइट है, उसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट पट्टी. फ्रिंज यानी पट्टी बताया था, तो ये ब्राइट पट्टी, है ना. और ब्राइट और ब्राइट के, एक ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच में जो मिलेगा वो डार्क फ्रिंज. मैंने फ्रिंज की कंसेप्ट बताना है आपको. 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क, है ना. और इसकी जो चौड़ाई है इसको क्या बोल देंगे? फ्रिंज विड्थ. इसकी चौड़ाई को क्या बोल देंगे? फ्रिंज विड्थ. तो इज इट क्लियर? तो मुझे इससे, इसके रिलेशन में अगर वो पोजीशन निकालना है, x कहाँ पे है, ये कहाँ पे मुझे डार्क मिलेगा या कहाँ पे मुझे ब्राइट मिलेगा. सपोज मुझे चाहिए ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, तो उसमें P कितना होना चाहिए? 2n लैम्डा बाय 2. हर एक 2n लैम्डा बाय 2 में मुझे ब्राइट मिलेगा. लगा देते यहाँ पे P इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2, या सिर्फ n लैम्डा बोल दो. तो फॉर, इसको याद रखो, इधर मैं हटा रहा हूं. फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना. हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. पिछले क्लास में बोला था हम पोजीशन निकाल सकते हैं, है ना. तो P इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 और सिंपली n लैम्डा, है ना. और इधर से ये पार्ट डिफरेंस है, क्या है? xd बाई डी, है ना. तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूं. इसको किससे इक्वेट कर देता हूं? एक्स डी अपॉन डी. तो x की वैल्यू मिल जाएगी क्या मुझे, है ना. x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d.
दिस इज पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस वेयर n is equal to 0 1 2 3. तो पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बताइए. x is equal to 0. x is equal to 0. अच्छा पोजिशन ऑफ, अच्छा x is equal to 0 को हम सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं. तो x is equal to 1 करेंगे तो हमको पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. ये सेंट्रल फ्रिंज है, x is equal to 0 में सेंट्रल फ्रिंज. तो पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लिखूं मैं यहाँ पे, पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज when n is equal to 1. when n is equal to 1 तो x वहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा d अपॉन d. दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी. दिस इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. तो मैं इसको यहां पे सपोज x1 b बोल देता हूं. ठीक है, x2b बताइए. हाँ, 2 लैम्डा d अपॉन d. x3b 3 लैम्डा d अपॉन d. ये क्लियर है? आपके क्वेश्चन में आएगा फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मैंने बता दिया. तो आप क्या डार्क फ्रिंजेस कैलकुलेट कर सकते हैं? करिए, तो कोशिश करिए. तो मैं इधर पे थोड़े चेंजेस करूंगा, बाकी सब वही रहेगा. पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे ये P इज इक्वल कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया, 2n माइनस 1. जब 2n माइनस 1 ले रहे हो तो n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से. 2 मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था. 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, यही है. इज इक्वल टू क्या है, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी. तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1. तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो n की जगह 1 रख दीजिए. 2 माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d. देखो जब प्लस लोगे ना 2n प्लस 1 में, तब आपकी n कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से. और 2n माइनस 1 जब ले रहे हैं तो n स्टार्ट होगा 1 से. ठीक है, तो ये लैम्डा डी अपॉन 2d हो गया. तो ये वाला क्या होगा, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d. और ये क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा डी अपॉन 2d. इज दिस क्लियर? दीज आर पोजिशंस विच यू आर टॉकिंग अबाउट. ये क्या है, पोजीशन है. मुझे विड्थ चाहिए, फ्रिंज विड्थ. तो क्या करूँगा, मैंने बोला, क्या बोला था, 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट होता है और 2 ब्राइट के बीच में एक, है ना. तो अगर मैं पोजीशन ऑफ से सेकंड फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रिंज निकाल दूं तो मुझे एक विड्थ मिल जाएगी. ठीक है, तो पहले मैं विड्थ ऑफ से सपोज विड्थ ऑफ पहला मैं बोलता हूँ डार्क फ्रिंज निकालता हूँ, ये है ना. तो इससे मैं ये माइनस कर दूँ तो विड्थ मिल जाएगा.
x2 भी माइनस x1 भी, या x बोल सकते हैं xn माइनस xn माइनस 1 कर दूंगा, यानी xn माइनस xn माइनस 1, तो कोई भी क्योंकि ये सब इक्वल ही होता है। तो चलिए इससे ये माइनस करिए तो बताइए तो, हाँ लैम्डा डी अपॉन डी है, हाँ, तो और क्या है लैम्डा डी अपॉन डी, है ना। अच्छा, हम इसको विड्थ को दिखाते हैं एक सिंबल से बीटा, फ्रेंच विड्थ यानी बीटा, ठीक है। फ्रेंच विड्थ, अब मैं ये हटा दूं, आपको ये सब समझ में आ गया ना। चलिए फ्रेंच विड्थ, फ्रेंच विड्थ, है ना। सो विड्थ ऑफ डार्क फ्रेंच, पहले बोले विड्थ ऑफ डार्क फ्रेंच कैसा होगा, xn माइनस xn माइनस 1, किसी भी, है ना, nth फ्रेंच के पोजीशन से n माइनस 1 फ्रेंच के पोजीशन को माइनस कर दो। मैं यहां पे सिंपल लेता हूं x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 क्या था, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D माइनस लैम्डा D अपॉन 2D, 3 लैम्डा D माइनस 2 लैम्डा D, माइनस 1 लैम्डा D, यानी हो गया 2 लैम्डा D अपॉन 2D, 2 कैंसल, लैम्डा D अपॉन D। दिस इज द फॉर्मूला किसका, बीटा का, लैम्डा D अपॉन D। ये बीटा फॉर डार्क फ्रिंज, बीटा फॉर डार्क फ्रिंज। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंज इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, इसके बराबर होगा। बीटा फॉर करके देख लो, करके देख लो। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस है, दो ब्राइट फ्रिंजेस, उसमें डाल के देख लो। एन लैम्डा डी अपॉन डी होता है ना, पोजीशन क्या होता है, एन लैम्डा डी अपॉन डी, है। तो सेम विड्थ ऑफ ये यहाँ पे xn माइनस xn माइनस 1, है ना, वो क्या है, एन लैम्डा डी अपॉन डी। एन को मैं पहले 2 ले लेता हूं, तो 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी, क्या बचा, लैम्डा डी अपॉन डी। सो फ्रिंज विड्थ फॉर बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल, एंड दिस इज द फॉर्मूला। So clearly both the bright and dark fringes are of equal width. Hence the expression for the fringe width in Young's double slit experiment can be written as beta is equal to lambda d upon d. ठीक है, as beta is independent of n, बीटा में n आ रहा है क्या कहीं पे, तो इसलिए सारे फ्रिंज विड्थ इक्वल होंगे। अगर n आता तो अनइक्वल होता है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो सारे फ्रिंज विड्थ इक्वल रहेंगे। एस बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, the order of the fringe, therefore all the fringes are of equal width in case of light. अब इससे आपको फ्रिंज विड्थ का कुछ इन्फरेंस निकाल सकते हो क्या, फ्रिंज विड्थ कैसा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोल दी, स्प्लिट मतलब स्प्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस था, और मतलब
बीटा यानी विड्थ ज़्यादा कब होगी? जब डी की वैल्यू बड़ी होगी। जब स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस लार्ज हो तो विड्थ चौड़ी मिलेगी। दूसरा वेवलेंथ भी तो है, ज़्यादा वेवलेंथ वाले की विड्थ ज़्यादा रहेगी और कम वेवलेंथ वाले की कम रहेगी। और सेपरेशन जितने पास रखोगे उतनी ज़्यादा चौड़ाई मिलेगी, है ना। दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन जो है जितना कम होगा उतना ज़्यादा चौड़ा आपको विड्थ मिलेगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंज का। इज दिस क्लियर? ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक। तो चलो इस पर कुछ सवाल करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वो क्या लिख दिया करो? YDSE। The two parallel slits are made 1 millimeter apart. The two parallel slits are made 1 millimeter apart, and a screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation? What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? What is small d? 1 millimeter. What is capital D? 1 meter. What is lambda? 500 nanometer. देखो अलग अलग यूनिट दिया है, यहाँ मिलीमीटर में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है, यहाँ नैनोमीटर में दिया है ना। हम एक काम करते हैं, सबको मीटर में चेंज कर देते हैं। 1 मिलीमीटर यानी कितना? 10⁻⁻, तो चलो ये 10⁻³ और ये 500⁻⁹ मीटर, सब मीटर में आ गया। अब बताओ फ्रिंज विड्थ निकालना है ना। बीटा इज इक्वल टू क्या? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा है 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 500 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। 5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। तो ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या है ये, है ना। 10⁻³ क्या होता है? मिलीमीटर, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ 0.5 millimeter. Laser light of wavelength 630 nanometer. Laser light of wavelength 630 nanometer incident on a pair of slits. Incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are
the bright fringes are separated by, in which the bright fringes are separated by 8.1 millimeter, one millimeter, 8.1 millimeter. A second light produces an interference pattern in which the fringes are separated by 7.2 millimeter. Calculate the wavelength of the second light. Separated by 7.2 millimeter. 7.2 millimeter. Calculate the wavelength of the second light. चलिए, हमको ये D नहीं मालूम और ये D नहीं मालूम है ना? स्मॉल d भी नहीं मालूम और कैपिटल D भी नहीं, कैपिटल D. लेकिन इन दोनों आइटरेशन में ये चेंज हो ही नहीं रहा है नहीं, ये हो नहीं रहा ना चेंज. तो क्या है भैया बीटा का फॉर्मूला? लैम्डा. ठीक. तो पहले वाले केस में हमको बीटा मालूम है और लैम्डा मालूम है क्या? बीटा 1 मालूम है और लैम्डा भी मालूम है भाई. 630 नैनोमीटर और बीटा है 8.1 मिलीमीटर. 8.1 मिलीमीटर है कि नहीं? सेकंड केस में ये बीटा 1 ले लेता हूं. तो बीटा 2 में मुझे क्या है, वेवलेंथ नहीं मालूम है, लेकिन बीटा 2 मालूम है. बीटा कितना है? 7.2 और लैम्डा 2 का आता पता नहीं है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 कर दूँ, डिवाइड कर देता हूँ, है ना? तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. इज दिस अंडरस्टूड? ये तो कैंसल हो गया. ये मुझे मालूम है कितना है? 8.1. ये भी मालूम है, ये कितना है? 7.2 और दोनों मिलीमीटर में है कि नहीं? तो एक कट गया. चलो ठीक है. लैम्डा 1 कितना है? 630. ये है नैनोमीटर में और लैम्डा 2 नैनोमीटर में. ये नहीं मालूम है ना? 8.1 7.2 कितना आया? 9 8 जार 9 जार. ठीक है. और 9 1 जार 7 जार. ठीक. अब लैम्डा 2 कितना हो गया? हाँ, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 70 560 नैनोमीटर. सिंपल कैलकुलेशन है. उसके बाद ये रिलेशन निकल गया. इसके बाद हाँ जी, आया समझ में? क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको समझिए. आप इसको सिंपल करो ना. ये देखो, ये इसलिए मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ना, ताकि आप मिस्टेक ना करें. बीटा 1 लैम्डा 1 बीटा 2 लैम्डा 2. इन ए YDSE comma, fringes are obtained on a screen placed at a certain distance
away from the slits. In a YDSC, fringes are obtained on a screen placed at a certain distance away from the slits. If the screen is moved by 5 cm towards the slits, if the screen is moved by 5 cm towards the slits, the fringe width changes by 30 micrometer. If the screen is moved by 5 cm towards the slit, the fringe width changes by 30 micrometer. Given that the slits are 1 millimeter apart, calculate the wavelength of light used. इसने बोला है कि भाई एक एक्सपेरिमेंट किए, उसमें बीटा की कुछ वैल्यू आई. अभी आपको नहीं मालूम बीटा की वैल्यू, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन किसकी वैल्यू मालूम है? स्मॉल डी की, है कि नहीं? तो मैं ये बोल सकता हूँ एक बीटा 1 है ना, इट इज इक्वल टू लैम्डा d1 अपॉन d, बिकॉज स्मॉल d इज नॉट चेंजिंग. यही है ना. अब क्या किया, वो जो स्क्रीन है उसको पास ले आए. कितना पास ले आए? 5 सेंटीमीटर. तो उससे जो एक फ्रिंज विड्थ मिला वो क्या हुआ? वो छोटा हो गया. कितना छोटा हो गया? चलो उसको मैं अभी बीटा 2 बोल देता हूँ. बीटा 2 छोटा हो गया है ना, और ये d2 कुछ चेंज हो गया, और ये d. अब हमको क्या दिया है? d2 इज इक्वल टू d1 माइनस 5 सेंटीमीटर. ये दिए ना, या 5 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर दूँ तो कितना हो गया? 0.05. यही होगा ना. और बीटा 2 छोटा हुआ ना. बीटा 2 कितना हुआ? बीटा 1 माइनस 30 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. वैल्यू रख दो क्या किसी का? इन दोनों को माइनस कर देते, सीधे सीधा दिस माइनस दिस करते हैं. बीटा 2 माइनस बीटा 1 करें. बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा d2 अपॉन d माइनस लैम्डा d1 अपॉन d. d लैम्डा d2 माइनस d1, d2 माइनस d1. d2 माइनस d1 कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर. b2 माइनस b1 कितना दिया है? 30 तो यहाँ पे रख देता हूँ 30 इंटू 10 पावर, और यहाँ पे क्या रख देता हूँ? 5 इंटू 10 पावर -2, और यहाँ पे क्या रख देता हूँ? 1 इंटू 10 पावर. हाँ जी, समझ में आ गया? क्या निकाल रहा है? लैम्डा. निकालो लैम्डा. 30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. -3 और ये -9 हो गया. 30 इंटू -9 और +2 और 5 1s are
5 6 सर, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इतना भी लिख दोगे तो आंसर सही है, लेकिन हमको नैनोमीटर में लिखना है तो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 600 नैनोमीटर। In YDSC, the width of the fringes obtained with in YDSC, the width of the fringes obtained with the light of wavelength 6000 angstrom, light of wavelength 6000 angstrom is 2 millimeter. Calculate the fringe width if the entire apparatus is immersed. Calculate the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid medium of a refractive index 1.33. Calculate the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid medium of refractive index 1.33. चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या उसका, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था ना वेवलेंथ से क्या उसका रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इट इज वेवलेंथ ऑफ, अच्छा लाइट से और लाइट और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, है ना। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, न्यू तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो वेवलेंथ भी वही होगा, म्यू इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही होगा ना। अभी मीडियम 1 क्या है? मीडियम 1 क्या है? एयर है, और मीडियम 2 कुछ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33। तो μ21 इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इन सेकेंड मीडियम। हमको वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम नहीं मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम मालूम है। सेकेंड मीडियम का वेवलेंथ निकल गया, निकल आएगा ना। अब वेवलेंथ निकल आया तो बाकी सब तो आपके पास है ही, डी भी है, कैपिटल डी भी है, स्मॉल डी भी है। क्या क्या दिया है बताइए? लैम्डा 1 कितना है? यानी 6000 इंटू 10⁻10 मीटर। और क्या दिया है? बीटा कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻3 मीटर। और क्या दिया? हाँ, ओह ठीक, -3। और क्या दिया? म्यू 1.33, ये दिया ना। वन 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखो, इधर देखो। दिस 1.3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। मैं अभी भी जो बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लाइट इन द फर्स्ट मीडियम जो कि एयर है, डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एंड डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो मुझे लैम्डा 2 मिल गया।
लैम्डा 2 विल बी इसका क्या है 6000 ×10⁻⁻. ठीक है, ये होगा 1/3 को हम क्या लिखते हैं 4/3 लिख सकते हैं ना. 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में. हाँ क्यों नहीं आया पता नहीं है ना. रुक जाओ, अभी इतना समझ में आ गया ना. अब सेकंड वाला जो है, जब उस मीडियम को हमने उसमें डाल दिया है ना, तो ये बीटा 2 जो आया वो क्या था, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, या लैम्डा 1 बोल देता हूँ. ये बीटा 1 है और बीटा 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 डी अपॉन. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. हाँ, या इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1. ठीक है, सो बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1 लैम्डा 2 डी अपॉन डी इंटू डी अपॉन लैम्डा 1 डी, और ये भी कट गया, ये भी कट गया. ये लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1. बीटा 2 नहीं मालूम, 2 × 10⁻³ है. ठीक है, लैम्डा 2 क्या है, ये लैम्डा 1 है ना. हाँ ठीक है, लैम्डा 2 क्या है, ये लैम्डा 1 बाय, यानी लैम्डा 1 अपॉन म्यू है कि नहीं. ये लैम्डा 1 है ना, लैम्डा अपॉन म्यू तो बीटा 2 है ना इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ और ये 1 अपॉन लैम्डा 1 यानी 3/4. हाँ ठीक है, 1.5. मैं ना जब भी 1.33 आता है ना तो उसको 4/3 समझता हूँ. समझ में आया आपको. 1.5 आया तो क्या करेंगे 1/2 3/2 है ना. तो 1.33 जब भी आया ना तो उसको कन्वर्ट कर लो यार फ्रैक्शन में, इजी हो जाता है. आया इजीली. ये वाला आया, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, इसको ज़रूरत ही नहीं है. मैं सीधे लैम्डा 1/λ2 म्यू इक्वल टू लैम्डा 1/λ2 उधर रख दूंगा उस रेशियो में तो आ जाएगा. इन YDSC the slits are separated by 0.5 millimeter. In YDSC the slits are separated by 0.5 millimeter and screen is placed 1 meter away from the slit. The slits are separated by 0.5 millimeter and the screen is placed 1 meter away from the slit. It is found that the fifth bright fringe is at a distance of 4.13 millimeter. 4.13 millimeter from the second dark fringe. It is found that the fifth bright fringe is at a distance of 4.13 millimeter from the second dark fringe. Find the wavelength of light used.
यही है ना फॉर्मूला, यही है कि नहीं है? तो फिफ्थ का चाहिए, कौन सा चाहिए? तो n इज इक्वल टू 5, तो क्या हो गया है ना? अब डार्क फ्रेंच का फॉर्मूला बताओ। 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। हाँ, तो ये सेकेंड डार्क फ्रेंच n इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा? 2 जार 4 माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, यानी 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। अब एक कंडीशन दिया है, क्या दिया है? फिफ्थ और सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4.1 है ना? तो यहाँ पे ये मान के चलो x1, ये मान के चलो x2। तो x1 माइनस x2 कर दो, कितना है? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D माइनस 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D, तो यानी 10 लैम्डा D माइनस 3 लैम्डा D अपॉन 2D। ये कितना है? 4 पॉइंट कितना है? ये 4.13, तो 4.13 इंटू 10 पावर माइनस 3 7 लैम्डा डी अपॉन 2d। लैम्डा चाहिए अपने को, है ना? लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू डी, हाँ ठीक है, इंटू 4.13 ऑन 7d, ठीक है। 2d की वैल्यू कितनी है? 0.5 माइनस 3, ठीक है, इंटू 4.13 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 7 d इज इक्वल टू 1। करो इसको, ये तो 1 हो गया, तो 4.13 डिवाइड बाय 7 करो इंटू 10 पावर माइनस 6, कैलकुलेट करो ना भाई, कैलकुलेट। 0.59 इंटू पूरा बताओ, माइनस 7 आएगा, हाँ 10 माइनस 6, हाँ ठीक है, 0.59 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। 1 2 3 590 नैनोमीटर। ये मैं किया हूँ, तुम इतना भी लिख दोगे ना तो आंसर सही रहेगा, उसको अलग नहीं। ये देखो, पॉइंट को एक बार किया तो 10, 2 बार किया तो 100 और एक बार और कर दिया तो 1000, यानी -3, -6 प्लस -3 -9 यानी नैनोमीटर। ठीक, तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक डिफ्रैक्शन।